अच्छा जी, तो जिस तरीके से मैपिंग रिडक्शन अभी हमने देखा ए टू बी का, अब एक और एग्जांपल लेते हैं एल डी से ए बार का। ये एल डी और ए बार टी एम क्या है, यह की सारी लैंग्वेजेस हैं। या फिर अगर इसमें देखें तो ये ओ आर ई लैंग्वेजेस है, जो कि हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट देखा था। A bar TM does not belongs to RE by proving that if A bar TM belongs to RE then LD belongs to RE as well, और इससे हम दोनों को RE लैंग्वेजेस है। अब प्रूफ जो है स्ट्यूरिंग मशीन का वो किस तरीके से आया था कि भाई हमने एक R construct the string, run the R machine on that string. If R accepts this, then H will also accept the string. If R rejects this, H will also reject the string. So let's do this with the help of mapping reduction. To prove this, we'll prove that LT is less than equal to M of A bar TM. Earlier theorem में जो हम देख चुके हैं कि भाई LD does not belongs to RE and we also have ATM which does not belongs to RE, तो उससे हमने क्या कंडीशन निकाली थी कि भाई ATM is at least as hard as LD, and since LD does not belongs to RE this means ATM also does not belongs to RE. तो वहाँ से हम ये अब अपना गोल आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई फाइंड अ कंप्यूटेबल फंक्शन एफ सच दैट एनी स्ट्रिंग belonging to LD will be acceptable if and only if f of m belongs to A bar Tn. Simplifying this using by LD, we can say that m does not accept the string if and only if f of m does not belong f of m belongs to A bar Tn. So let's assume it that this f of m has a form of n comma w, वही पुरानी वाली अभी जो हमने कुछ स्लाइड्स पहले देखा था, that is for some Turing machine n and a string w. This means that m does not accept the string if and only if n comma w belongs to A bar Tm, and m does not accept this string if and only if n does not accept this string. So if we choose a string and a machine such that the above is true, we will have our reduction from LD to A bar TM. अब क्योंकि ये A bar TM है तो इसमें हर जगह does not ही आएगा। अगर A TM होता तो ये होता M will accept। तो इसके लिए हमने करना क्या होगा, फाइनली n को m के बराबर चूज करना होगा और स्ट्रिंग को m के बराबर चूज करना होगा। तो वो कुछ इस तरीके से हमें नज़र आएगा कि हमारे पास m स्ट्रिंग आ रही है, हमने उसको कंप्यूट f किया और एक मशीन बनाया m कॉमा m का, और उसका एक रिकॉग्नाइजर बनाया A बार TM के लिए। On input m, run the machine R on m comma that string. If R accepts it, then H will accept the string. If R rejects it, then H will reject the string. तो उसकी इंट्यूशन क्या हुई कि H accepts the string if and only if R accepts m comma string, if and only if m does not accept this string. So this shows that the string belongs to LD. अब आवाज़ क्लियर है यहाँ तक? जी सर क्लियर है। जी सर क्लियर है आवाज तो बिल्कुल। जी सर क्लियर है। हाँ, अब इसी को अगर थ्योरम के थ्रू हम करें कि A बार TM डज नॉट बिलोंग्स टू RE, तो वी प्रूव दैट LD लेस देन इक्वल टू M A बार TM। हमने ये प्रूफ किया, अभी अभी प्रूफ किया है, सिंस LD डज नॉट बिलोंग्स टू RE दिस प्रूव्स दैट A बार TM आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू RE. दिस शोज दैट दिस condition LD less than equal to M A bar TM will give us a mapping reduction from LD to A bar TM. और मैपिंग रिडक्शन हमने कैसे बनाई थी कि फॉर एनी ट्यूरिंग मशीन m लेट f of m बी m कॉमा स्ट्रिंग ऑफ m, दिस फंक्शन f इज कंप्यूटेबल। तो इससे हमें क्या चीज़ पता चल रही है, यही कि वी हैव अ लैंग्वेज विच इज
उसको रिड्यूस करते हैं तो व्हाट वी गेट इज वी गेट अ फंक्शन विच इज कंप्यूटेबल। तो जब कभी भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो जो कंप्यूटेबल, this can become computable. It can be either by decidability or by reducibility. या तो वो डिसाइडिंग में आ जाएगा, डिसाइडिंग में आ गया तो भी वो कंप्यूटेबल हो जाएगा, या फिर वो रिड्यूसिबिलिटी में आ गया, रिड्यूसिबिलिटी में आ गया तब भी वो कंप्यूटेबल हो जाएगा। तो इन दोनों तरीके से हम जो है वो किसी भी लैंग्वेज को प्रूव कर, ठीक है। जी सर। ठीक है भाई। So to Yes, prove sir. that f is a mapping reduction from LD to a bar Tm, we prove for all Tm's m that this string of m belongs to LD if and only if this m comma string of LD no does not accept this string. Similarly, by definition of a bar Tm, we know that m does not accept this string if and only if m comma that string does not belongs to a bar Tm. So combining the above two statements, we can see that this string belongs to LD if and only if m comma the string belongs to a bar Tm. Thus, f is a mapping reduction from LD to a bar Tm. So we can say that LD is less than equal to a bar Tm, which was required for us to prove. तो इस तरीके से जो है ये पूरा स्टेप वाइज प्रूव होता है कि हाउ वी कैन मैप अ रिडक्शन एंड प्रूव इट। तो यहाँ तक अभी जो भी हमारे कॉन्सेप्ट था वो सारा यही था कि भाई रिकॉग्नाइजेबिलिटी, कंप्यूटेबिलिटी, फिर उसके बाद रिड्यूसिबिलिटी और उसके फर्दर प्रूफ्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक हायर ऑर्डर या एडवांस टॉपिक पे, विच इज़ दी एम्पलीफायर मशीन। एम्पलीफायर मशीन इज नथिंग बट अ एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ट्यूरिंग मशीन. It arises from the concept of TMs in TM. मीन्स के ट्यूरिंग मशीन्स के अंदर भी ट्यूरिंग मशीन, जैसे हम पहले देख चुके हैं कि भाई ट्यूरिंग मशीन कैन रन ट्यूरिंग मशीन्स एज सब रूटीन्स। जो हमने सब रूटीन्स का कॉन्सेप्ट देखा था पहले, उसमें ये था कि एक ट्यूरिंग मशीन किसी दूसरी ट्यूरिंग मशीन को अपने अंदर एज अ सब रूटीन चला सकता है। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस सर्टेन प्रॉब्लम्स टू वन अनदर, इट इज़ यूजफुल टू एम्बेड ट्यूरिंग मशीन्स इनसाइड ऑफ वन अनदर। तो ये एडवांस कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे पास आता है कि भाई हम बजाय इसके कि एक ही ट्यूरिंग मशीन बनाएं, हम अपने प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए ट्यूरिंग मशीन्स इनसाइड वन अनदर डिज़ाइन कर दें, जिससे बेहतर, इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी। एक पर्टिकुलर ट्यूरिंग मशीन एक पर्टिकुलर टास्क कर रहा होगा, दूसरा टास्क कर रहा होगा, और इस तरीके से हमारा जो प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूसेबल होके सॉल्व हो जाएगा। वन कंस्ट्रक्शन इज़ यूजफुल फॉर रिडक्शंस लाइक दिस। एक कंस्ट्रक्शन जो है वो रिडक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम आराम से रिड्यूस हो जाती है और फिर उसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब ये एम्पलीफायर मशीन दिखता कैसा है कि भाई फॉर एनी ट्यूरिंग मशीन एम एंड स्ट्रिंग डब्ल्यू, लेट ए एम पी एम कॉमा डब्ल्यू बी दिस ट्यूरिंग मशीन। और इसकी लैंग्वेज क्या है, ए एम कॉमा डब्ल्यू इज इक्वल टू ऑन इनपुट एक्स ignore it, run m on the string. If m accepts the string, then amplifier will accept that x आया, आपने उसको इग्नोर किया है, लेकिन अगर आपका मशीन जो है वो उसके स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका एम्पलीफायर उस x को एक्सेप्ट करेगा। और अगर आपका मशीन